حج کی دولت جسے مل نہ پائے جائے جائے وہ گھر اپنے. تو نے میرے جبے کو بہت سستا بیچ دیا رب کی بارگاہ میں. کہنے لگا سرکار سستا کہاں بیچا؟ سومنات کی فتح میں نے مانگی ہے اور اللہ نے آپ کے جبے کے صدقے میں فتح عطا فرما دی. خواجہ ابو الحسن فرقانی نے کہا محمود اگر آپ تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیتا کہ پروردگار اس جبے کے صدقے میں سومنات کے سارے کافروں کو دامن اسلام سے وابستہ کر دے تو خدا کی قسم اللہ سب کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیتا, سب مسلمان ہو جاتے. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اتنا بزرگ بادشاہ تھا, ایسا ولی صفت بادشاہ تھا, مگر ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے وقت آتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. محمود غزنوی کے دور میں بھی اس کے زندگی میں کچھ ایسے حادثات رونما ہوئے کہ وہ پریشان ہو گیا. اس کے زندگی کے جو سب سے بڑے حادثات تھے وہ 3 سوالات تھے جو محمود کو بہت پریشان کر رہے تھے. پہلا سوال یہ تھا, لوگوں نے اس کے تخت پر بیٹھنے کے بعد میں اعتراض کرنا شروع کر دیا, آواز لگانی شروع کر دی کہ محمود غزنوی سبکتگین کا سگا بیٹا نہیں ہے بلکہ سبکتگین نے اسے پالا ہے. سبکتگین اس کے سگے باپ کا نام نہیں ہے, سبکتگین نے تو اسے گود لیا تھا, اسے پالا ہے. اب اس نے پورے اپنے بادشاہت میں جتنے لوگ موجود تھے پرانے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ہر ایک سے پوچھتا کہ بتاؤ میرے باپ سبکتگین ہے کہ نہیں, میں ان کا سگا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں. کوئی کہتا بادشاہ آپ ان کے سگے بیٹے ہیں, کوئی کہتا مجھے علم نہیں. تشفی بخش جواب اسے نہیں ملا, پریشان ہو گیا کہ میں کس سے جواب پوچھوں, نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے کہ میں جا کر ان سے پوچھوں کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں یا آپ نے مجھے گود لیا ہے, آپ نے میری پرورش کی ہے, آپ نے مجھے پالا ہے. اب وہ تو دونوں زندہ نہیں ہیں. دوسرا سوال یہ تھا, حضرات وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے حدیث جو پڑھی تھی العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس نے اپنے علماء کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بتاؤ اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کچھ علماء کہتے یہ حدیث صحیح ہے, کچھ کہتے یہ حدیث ضعیف ہے, کچھ کہتے اس حدیث کی سند میں کمزوری ہے. حضرات اسے بھی تشفی بخش جواب نہ ملا. وہ پریشان تھا کہ میرے آقا کا یہ فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو پھر یہ حدیث اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا پرچار کیوں کیا جا رہا ہے, اور اگر صحیح ہے تو پھر علماء اس کے بارے میں شش و پنج میں کیوں مبتلا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا اس کی زندگی کا. اور تیسرا سوال یہ تھا, وہ سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. جو اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ علماء سے پوچھتا تو علماء یہی جواب دیتے بادشاہ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو آپ جنت میں جائیں گے, اگر برے اعمال ہوں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. مگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ جنت ہی میں جائیں گے یا آپ جہنم میں جائیں گے. یہ 3 سوالات تھے اس کی زندگی کے جو اس کی نیند کو اڑا دیا تھا. رات کی نیندیں اڑ گئی تھی محمود غزنوی کی, وہ پریشان رہتا تھا ہمیشہ انہی 3 سوالات کے جواب کو لے کر وہ پریشان رہتا. بار بار کبھی محمود غزنوی کا جو وزیر ایاز کہتا بھی کہ بادشاہ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں, ان سوالوں میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ لیکن محمود غزنوی کہتا ایاز مجھے ان سوالوں نے مجھے جینا دشوار کر دیا ہے, مجھے راتوں کی نیند میری اڑ گئی ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. جب تک مجھے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں مل جائے گا مجھے چین نہیں ہوگا, مجھے سکون نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح بادشاہ کا وقت گزرتا رہا. تاریخ بتاتی ہے ایک دن محمود غزنوی اپنے گھر کے چھت پر رات میں چہل قدمی کر رہا تھا. رات کا وقت تھا, سیاہی رات تھی, چہل قدمی کر رہا تھا. اچانک محمود غزنوی کی نگاہ جاتی ہے, اس نے دیکھا اس کے گھر سے بغل میں, اس کے محل کے بغل میں جو مسجد تھی اسی مسجد کے حجرے سے ایک طالب علم ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر نکلتا ہے. اور نکلنے کے بعد میں محمود غزنوی کے گھر کے پاس آتا ہے اور اس کے محل سے جو روشنی درجے سے چھن چھن کے باہر جا رہی تھی اسی روشنی میں وہ چھوٹا سا بچہ کتاب لے کر آ کر اور روشنی میں کچھ پڑھتا ہے, اور کچھ دیر پڑھنے کے بعد پھر مسجد کے حجرے میں چلا جاتا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ بچہ باہر آتا ہے اور آنے کے بعد پھر
रोशनी में कुछ देर तक वो किताब पढ़ता है, फिर हुजरे में चला जाता है। इसी तरह वो बच्चा बार बार कर रहा है। महमूद गजनवी अपने छत के ऊपर से इसी तरह देखता रहा। जब सुबह का वक्त हुआ, दरबार लगा, उसने वजीर से कहा, जाओ जो मोहल्ले में हमारे किले के बगल में मस्जिद है, उस मस्जिद में जो मदरसा है जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वहाँ फला फला शक्ल का बच्चा है, उसका फला फला हुलिया है, उसे लेकर मेरे पास आओ। वजीर गया और जाने के बाद उस छोटे से बच्चे को जब महमूद गजनवी के दरबार में पेश किया गया, महमूद गजनवी ने उस बच्चे को देखकर पहचान लिया। कहा हाँ यही वो बच्चा है। बच्चे को करीब बुलाया और कहने लगा, बेटे बताओ, मैंने रात में तुम्हें देखा है, तुम मस्जिद के हुजरे से निकलते थे और निकल कर आकर मेरे महल के पास में तुम किताब पढ़ते थे, फिर हुजरे में चले जाते थे, ये क्या मामला है? वो छोटा सा बच्चा कहता, बादशाह मुझे सुबह उस्ताद को सबक सुनानी है। मैं कुरान पाक याद कर रहा था, मैं अरबी याद कर रहा था, इसलिए कि सुबह उस्ताद को सबक सुनानी है, और अगर रात में याद नहीं करूंगा तो सुबह उस्ताद को क्या सुनाऊंगा? इसलिए मस्जिद में अंधेरा था, मस्जिद के कमरे में हुजरे में अंधेरा था, आपके महल से रोशनी छिन छिन के बाहर आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ देर उस रोशनी में पढ़ लिया जाए। मैं आपके घर से निकलने वाली रोशनी में जाता और जो याद करना रहता उसे देख लेता और फिर आकर अपने हुजरे में बैठकर उसे रखता। जब वो याद हो जाता तो फिर आगे का हिस्सा देख लेता। इसी तरह मैं रात भर उसी रोशनी में सबक याद करता रहा ताकि सुबह उस्ताद को सबक सुना सकूं। इतना सुनना था, महमूद गजनवी की आंखें भीग जाती हैं। उसने फौरन अपने वजीर को कहा आज के बाद में हमारे महल के बगल में जो मस्जिद है, चूंकि पहले जो मदरसे होते थे वो मस्जिद ही में होते थे, हजरात उसने कहा आज के बाद से उस मदरसे में कभी अंधेरा नहीं रहेगा, उस मस्जिद के लिए रोशनी का एहतमाम मेरे महल से जाएगा, पूरा खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा। आज के बाद में किसी मदरसे में अंधेरा नहीं होगा, वहाँ इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए रोशनी का इंतजाम किया जाए। कोई तालिब इल्म अब रात में बगैर सबक याद किए हुए महरूम नहीं रहेगा, अब सबक याद करके सोएगा। किसी तालिब इल्म को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी इल्म दीन हासिल करने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए। महमूद गजनवी ये हुक्म देकर चला जाता है। शाम का वक्त हुआ, तवज्जो करें, 3 सवाल थे महमूद गजनवी के जिंदगी के जो उसे परेशान कर रहे थे। पहला सवाल ये था कि वो सुमुफ्तकीन का सगा बेटा है या नहीं है। दूसरा ये था अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये हदीस सही है कि नहीं है। तीसरा सवाल ये था कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। रात का वक्त जैसे हुआ, महमूद गजनवी जैसे बिस्तर पर लेटा, आंख लगी, इधर आंख लगी, उधर मदीने वाले का जलवा नजर आ गया। गुंबद खजरा के मक्की तशरीफ लाए, महमूद गजनवी खड़ा होकर कदमों पे गिर जाता है, अर्ज करता या रसूल अल्लाह आपने गुलाम पे कैसे करम कर दिया। आका आते ही फौरन फरमाते हैं, ओ सुमुफ्तकीन के बेटे, तवज्जो करना। उसका पहला सवाल क्या था कि मैं सुमुफ्तकीन का बेटा हूं कि नहीं हूं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत आते ही पहला जुमला आका ने फरमाया, ओ सुमुफ्तकीन के बेटे। ये उसके पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल ये था अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है कि नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ सुमुफ्तकीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, वारिस का एहतराम किया है, एक इल्म दीन हासिल करने वाले की इज्जत और तौकीर की है। ये दूसरे सवाल का जवाब था। वो समझ गया यार उलमा वरसतुल अंबिया हदीस सही है, क्योंकि मुस्तफा खुद फरमा रहे हैं कि तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, वारिस का एहतराम किया है। अब तीसरा सवाल था कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने एक इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे की इज्जत करने, एहतराम करने और मदद करने की वजह से कितना बड़ा इनाम अता फरमाया। फरमाया सुमुफ्तकीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की इज्जत की है। सुन कल मैदान महशर में मैं मोहम्मद तेरी शफाअत करा के तुझे जन्नत अता करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया फैजाने गरीब नवाज, जामिया फैजाने गरीब नवाज, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। प्यारे, एक तालिब
तालिब इल्म की इज्जत करने से उसे ये मकाम मिलता है। तो अगर आप उलमा की ताज़ीम करेंगे, अपने इमाम की ताज़ीम करेंगे, उलमा का एहतराम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो अब आप जरा तसव्वुर करो अल्लाह ताला कितना अता फरमाएगा आपको, कितना नवाजेगा आपको, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे, आज हमने तो मुआशरे में मुआशरे का ऐसा माहौल बना दिया है कि उलमा को हमने अपना गुलाम समझ लिया है, अइम्मा को अपना गुलाम समझ लिया है। हम समझते हैं ये हमारी मस्जिद में नौकरी करते हैं, इमामत करते हैं, तो हमारे नौकर हैं, हमारे गुलाम हैं, हम जैसा चाहेंगे इनको चलाएंगे। याद रखो प्यारे, इमाम और नौकर नहीं होता है, बल्कि याद रखो मुसलमानों, कल मैदान महशर में तुम्हारा तो अपना कोई वजूद ही नहीं होगा, तुम्हारी तो कोई अपनी हैसियत ही नहीं होगी। उठाओ कुरान, उठा कर देखो, कुरान में रब इरशाद फरमाता है कल मैदान महशर में जब आपको बुलाया जाएगा तो आपका नाम लेकर नहीं, आपके इमाम के जरिए आपको बुलाया जाएगा। आपका इमाम वहां भी आपके लिए पहचान होगा, आपका इमाम वहां भी आपके काम आएगा। इसलिए इमाम गुलाम नहीं होता है, इमाम इमाम होता है, वक्त का बादशाह होता है, आलिम ये रहबर है कौम का। आओ प्यारे, हमने कुरान की कोई अजमत समझा ही नहीं है। कुरान हासिल पढ़ने वालों को, कुरान की तालीम देने वालों को हमने कोई जो है अहमियत नहीं दी है, और हमने कुरान को घर में ताप की जीनत बना कर रख दिया है। मगर आओ प्यारे, देखो कुरान हमें किस मकाम पर पहुंचाता है। इसी कुरान को पढ़कर आज यूरोप कंट्री, आज साइंसदां कुरान ही को पढ़कर कहां से कहां पहुंच गए। और ये मुसलमान जिसके लिए कुरान नाजिल हुआ है, जिसकी हिदायत के लिए, रहबरी के लिए ये कुरान से लाताल्लुक होकर, कुरान से रिश्ता तोड़कर हजरात ये पस्ती की तरफ जा रहा है, दिन ब दिन पस्ती की तरफ मायल होता जा रहा है। और मुआशरा हमारा इतना बिगड़ चुका है, अल्लाह की पनाह, कि आज हमारे माशरे में हजरात जहां भी मुस्लिम बस्ती पाई जाती है वहां देखोगे आप तो प्यारे इल्म दीन से कोरे, शरीयत से कोरे, मगर प्यारे हाल देखोगे दुनियावी एतबार से तो हजरात कोई ऐसी बुराई नहीं मिलेगी जो हमारे मुआशरे में ना पाई जाए। आज चरस, गांजा, अफीम, जितनी भी नशा आवर चीजें हैं आज हमारे नौजवानों के अंदर देख लीजिए कसरत से पाई जाती है। आज हमारा नौजवान कहां जा रहा है, हमारा नौजवान किस तबाही के दलदल में जा रहा है। याद रखो मुसलमानों, ये आप सोच रहे हो, और फिर हमारे जानते हो नौजवानों का हाल क्या होता है कि ये नशा आवर चीजें इस्तेमाल करेंगे और पुलिस के साथ घूमेंगे तो समझेंगे कि यार पुलिस से हमारा बड़ा याराना है, बड़ी दोस्ती है, ये तो हमें कुछ नहीं बोल रहा है, घरों को तो पीट रहा है, मगर हम नशा करते हैं हमें तो कुछ नहीं बोलता, हमारे तो पीठ थपथपा रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखो मुसलमानों, ये आपको जहर में पिला रहा है, आपको तबाही की तरफ ले जा रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक मर्तबा मैं दुकान पर बैठा हुआ था, हजरात वहाँ एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ था। हमारे एक साथी ने जो है उससे पूछा, सर एक बात बताइए, हंसी मजाक उससे कर रहा था, दोस्ताना था उससे कहा सर एक बात बताइए, मैंने आपको देखा है कि जब आप मुस्लिम मोहल्ले में जाते हैं और वहाँ के बच्चे चरस पीते हुए आपको मिलते हैं, गांजा पीते हुए, नशा करते हुए मिलते हैं, तो आप मुस्कुराकर और उनसे हफ्ता लेकर और पीठ थपथपाकर चले जाते हैं और वो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। और आपको मैंने देखा है गैरों के मोहल्ले में जाते हैं, गुजराती मराठी के मोहल्ले में जाते हैं, अगर कोई बच्चा नशा करता हुआ मिलता है तो उसे आप पकड़ के मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और उसे बंद भी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमारे बच्चों को क्यों नहीं डांटते हैं? उसने कहा ये बात यही की, रहने दो, ये मत मुझसे मत पूछो। कहा नहीं सर बताइए, तो दोस्ताना था। उसने कहा ठीक है, अगर पूछ रहा तो बता देता हूँ। ये हमें कहा गया है कि अगर मुस्लिम बच्चे तुम्हें नशा करते हुए मिले, तुम्हें सख्ती नहीं करनी है उनके साथ में, उन्हें डांटना मारना पीटना नहीं है, उन्हें जेल में नहीं डालना है, ताकि उनकी हिम्मत और बढ़े, उनकी हौसला अफजाई करो। इसलिए कि मुसलमानों से तलवार और ताकत के जरिए कोई जंग नहीं जीत सकता। अगर लड़ना है, तबाह करना है, तो उनको गलत कामों में लगा दो, उन्हें नशावर चीजों की तरफ माइल कर दो, खुद वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें तबाह बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें मिटाने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें ऐसी चीजों में मुलविस कर दो कि उनकी नस्लें ही तबाह हो जाएगी। और हो यही रहा है प्यारे। हम फख्र समझते हैं, हमारा जवान सोचता है कि अरे हमारा तो याराना है, दोस्ताना है, हमें कुछ नहीं कहते हैं। मगर याद रखो मुसलमानों, ये आपके लिए दोस्ती नहीं, ये सबसे बड़ी दुश्मनी है। हजरात दोस्त वो है कि गलत काम
काम करते हुए देखे तो डांटे, अगर ताकत है तो आवाज से मना करे, अगर ताकत नहीं है तो जबान से मना करे, अगर उतना भी नहीं तो कम से कम जबान से बुरा जाने। और यही इस्लाम भी हमें सबक दे रहा है, शरीयत भी यही कह रही है, हदीस मुस्तफा भी यही है। वो नहीं दोस्त है कि जो आपको बुराई करता हुआ देखे और आपको बुराई की तरफ मायल करे। इसलिए मुसलमानों, अभी भी मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि प्यारे अभी भी वक्त है, आओ दीन की तरफ लौट आओ, शरीयत की तरफ लौट आओ, इस्लाम की तरफ लौट आओ, उन तमाम बुरे कामों से बाज आ जाओ जिससे शरीयत ने हमें मना फरमाया है, उन तमाम चीजों से रुक जाओ जिससे इस्लाम ने मना फरमाया है। प्यारे आओ दीन की तरफ आओ, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दुनिया हासिल करो। आज प्यारे हम रोना रोते हैं कि गैरों ने हमसे ये ले लिया, गैरों ने हमसे ये ले लिया, हमारे बच्चे तालीम हासिल करके उनको नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, तुम अपने बच्चों को सही मानों में अच्छी तालीम दो, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दो। अच्छी तालीम दोगे तो आपके बच्चे को जरूर नौकरी मिलेगी। प्यारे हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते नहीं, मेहनत करते नहीं, पढ़ते हैं ही नहीं, फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी? वरना प्यारे आज भी मुसलमान बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो मशक्कत कर रहे हैं, देखो आज भी वो IAS बन रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। मेहनत करोगे प्यारे, उन्हें मजबूर होकर आपको नौकरी देनी पड़ेगी, और आप पढ़ोगे ही नहीं, इल्म हासिल ही नहीं करोगे तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी? इसलिए मुसलमानों, इल्म दीन भी हासिल करो, इल्म दुनिया भी हासिल करो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलो फिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दुनिया का जिक्र फरमाया, क्योंकि जब मेरे आका ने यह फरमाया उतलुबुल इल्मा वलो फिस्सीन, तो इल्म दीन तो सब कुछ मदीना ही में था, मुस्तफा जाने रहमत ही की बारगाह इल्म दीन का मरकज़ो महवर थी, तो आप फिर चीन जाने का हुक्म क्यों दे रहे थे? तो उलमा फरमाते हैं इसमें इशारा इल्म दुनिया का था कि उस जमाने में चीन दुनियावी तालीम में सबसे आगे था। इसलिए मेरे आका ने इशारा फरमाया कि तुम इल्म दीन भी हासिल करो और इल्म दुनिया भी हासिल करो, दोनों जरूरी है, क्योंकि इल्म दुनिया के जरिए भी तुम इस्लाम की मदद करो, इल्म दीन के जरिए तो तुम मदद करोगे ही करोगे, मगर इल्म दुनिया के जरिए भी तुम इस्लाम की मदद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि जब हमारा बच्चा इल्म दुनिया में माहिर होगा, IAS होगा, बड़े ओहदों पर फाइज होगा, तो हमारा इमाम मस्जिद में रहकर मुसल्ले की हिफाजत करेगा और हमारा बच्चा कलम की ताकत से मस्जिद के मीनारे की हिफाजत करेगा। इसलिए इल्म दुनिया हासिल करके हमारा बच्चा मस्जिद और मस्जिद के मीनारे को बचा सकता है, और हमारा आलिम, हमारा इमाम मुसल्ले पर रहकर मुसल्ले को बचा सकता है। इसलिए दोनों जरूरी है। इसलिए मुसलमानों, अभी भी वक्त है, सुधारो अपने बच्चों को, अपने माहौल को, मुआशरे से खत्म करो इन बुराइयों को, ये नशावर चीजों का खात्मा कर दो। ये हमारे लिए नहीं है, ये जिनके लिए है उन्होंने छोड़ दिया है, और जिनके लिए नहीं है उन्होंने अपना लिया है। अल्लाह अकबर। मुसलमान तो सबके लिए मशअले राह बनकर आया था। हजरात, मुसलमान तो वो होता है कि इसके चालो चलन को देखकर, इसके नक्शे कदम को देखकर गैर कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। आखिर में आज मसलाफ का नाम इतना क्यों लेते हैं, उनका जिक्र क्यों करते हैं, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं, गौसे आजम का नाम क्यों लेते हैं, गरीब नवाज का नाम क्यों लेते हैं, निजामुद्दीन का नाम क्यों लेते हैं, क्यों इनका जिक्र कर रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने ऐसे लोगों से पा छोड़े हैं, ऐसे शाहराह मुतय्यन कर दी है कि एक नहीं बल्कि प्यारे इनके चालो चलन को देखकर हजारों हजार कलमा पढ़कर मुसलमान होते हुए नजर आए। सरकार गरीब नवाज के हाथों पर 92 लाख गैरों ने कलमा पढ़ा था। क्यों पढ़ लिया था? क्योंकि सरकार गरीब नवाज का चलना, उठना, बैठना, जिंदगी गुजारना सब सुन्नत मुस्तफा के आईने में थे, शरीयत के मुताबिक थी। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी गैरों ने कलमा पढ़ा था। और आज हम कुरान के मानने वाले, कुरान पढ़ने वाले, मगर कुरान की तालीमात से दूर है। पहली बात तो ये है कि हम कुरान की तालीमात के करीब जाते नहीं, और जो जाते हैं वो भी प्यारे पर रस्मन उसे तलावत कर लेते हैं। इसलिए जरूरत है प्यारे, हमारे मोहल्लों में जो मदरसे कायम हैं, इन मदरसों को आप मामूली न समझें और उनकी खिदमत करना ये मामूली न समझें। याद रखो मुसलमानों, इन्हीं मदरसों की तालीम से बच्चा कुरान नाजरा पढ़कर वो आगे जाता है, फिर हाफिज़ कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है। हज़रात, इस मदरसे से बच्चा कुरान पढ़कर जब निकलता है और उसका सीना नबी का मदीना बनकर जब वो निकलता है, अपने सीने में कुरान लेकर चलता है, तो याद रखो जिन जिन लोगों ने उस मदरसे का ताउन किया होता है, उसमें खिदमत की होती है। हज़रात, सिर्फ बच्चे को नहीं
बल्कि सबको उसका सिला मिलता है। आओ बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, अज़ीज़ान गिरामी, कुरान की अज़मत देखो। आओ दहली की सरजमीन पर चलो, तारीख के वराक़ में आपके सामने उलट कर दिखाऊं कि कुरान की अज़मत क्या है। दहली की सरजमीन है, दहली की सरजमीन पर एक पंडित ने आज से कई सौ साल पहले एक ऐलान किया था, मुनाज़रे का चैलेंज किया था मुसलमानों को। उसने कहा था कोई मुसलमान है जो मुझसे मुनाज़रा कर ले, कोई मुसलमानों के अंदर आलिम है जो मुझसे मुनाज़रा कर ले, कोई मुसलमानों का मुनाज़िर है जो मुझसे मुनाज़रा करे। लोगों ने कहा कैसा मुनाज़रा? उसने कहा मैं मुनाज़रा ये करना चाहता हूँ कि हमारा धर्म सच्चा है या तुम्हारा इस्लाम सच्चा है। कहा बुनियाद क्या होगी? कहा उसने आओ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो ले गया अपने एक मंदिर के पास में जो 2000 साल पुरानी इमारत थी। उसने कहा देखो ये मंदिर 2000 साल पुरानी इसकी इमारत है, इसकी ईंट उसी तरह चमक रही है, दरो दीवार उसी तरह सलामत है, छत उसी तरह सलामत है। 2000 साल पुरानी इमारत है मगर दरो दीवार सलामत है, ईंटें सलामत है, छत सलामत है। इसका मतलब ये है कि ये जब मंदिर हमारी 2000 साल पुरानी इसकी इमारत है तो इसका मतलब हमारा धर्म सच्चा है। वरना आप मस्जिद बनाते हो और मस्जिद बनाने के बाद में एक ही साल में इमारत पुरानी हो जाती है, आप उसे रंगो रोगन करते हो, उसको कलर करते हो। अगर कलर ना करो तो मस्जिद की दीवारें बोसीदा हो जाती हैं, छत बोसीदा हो जाती है, आप उसे रंगो रोगन करते रहते हो, चमकाते रहते हो। मगर देखो ये 2000 साल पुरानी इमारत है, हमने इसमें कोई रंगो रोगन नहीं किया था। ये वो ईंट जैसे 2000 पहले चमक रही थी आज भी वैसे चमक रही है, जैसे दीवार पहले सलामत थी आज भी सलामत है। ये बता रही है कि हमारा धर्म सच्चा है और तुम्हारा धर्म गलत है। या अल्लाह अकबर। उसने ये ऐलान किया कि इस बेस पर अगर तुम्हारे पास कोई जवाब है तो उसका जवाब दो और मुनाजरा कर लो। दहली के सारे उलमा परेशान थे, ये कौन सा सवाल है, इसका क्या जवाब दिया जाए। ना तो कोई किताबी सवाल कर रहा है, ना तो कोई दीनी सवाल कर रहा है। कोई धर्म की बात होती, दीन की बात होती तो उसका जवाब दिया जाता। ये इमारत को लाकर बीच में मुनाजरा करना चाहता है, अब इमारत का जवाब कैसे दिया जाएगा। सारे उलमा परेशान हो गए, जवाब नहीं बन रहा था कि क्या जवाब दिया जाए। सारे उलमा इकट्ठा होकर जमा होकर गए। कहाँ गए? कलंदरे वक्त हजरत एक मुजाहिद के पास। वो मुजाहिद कोई और नहीं था, हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। उनकी तूती बोल रही थी दहली की सरजमीन पर, आपका कोई हमसर नहीं था। सारे उलमा गए आपकी बारगाह में, कहने लगे सरकार अब इसका जवाब आप ही दे सकते हैं, मुनाजरा चैलेंज आप ही कर सकते हैं। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कैसा मुनाजरा? कहा एक पंडित ने ऐलान कर दिया है कि हमारी एक जो मंदिर है उसकी इमारत 2000 साल पुरानी है, उस इमारत के बेस पर वो कह रहा है हमारा धर्म सच्चा है और तुम्हारा धर्म झूठा है, इसलिए कि तुम मस्जिद बनाते हो, एक साल के बाद में वो पुरानी हो जाती है इमारत, उसे रंगो रोगन करते हो, उसे चमकाते हो, कलर करते हो, और हमने कुछ भी नहीं किया है मगर आज भी इमारत चमक रही है, आज भी दीवार सलामत है। सरकार इसका क्या जवाब दिया जाए? शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी कलंदरे वक्त उठा, झूमता हुआ, मुस्कुराता हुआ, कहा बस इतनी सी बात है, इसके लिए सब परेशान हो। कहने लगे हुजूर आपको ये मामूली बात लग रही है, इसका कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा है। आप उठे, कहा मुझे ले चलो उस पंडित के पास, मैं इसका जवाब दूंगा। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी चले, सारे उलमा दहली के पीछे पीछे चल दिए। एक मैदान में उसी मंदिर के पास सब जमा थे, 1000 के तादाद में गैर मुस्लिम मौजूद थे, बड़े बड़े पंडित महंत जमा थे। हजरात सब इंतजार कर रहे थे जब शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह उलमा की जमात के साथ वहां पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद आपने फरमाया कहां है वो पंडित, कहां है वो महंत, लाओ उसे सामने। वो महफिल में मौजूद था, सामने निकल कर आ गया लगोट पहनकर, कहा मैं ही हूं, मैंने मुनाजरे का चैलेंज किया है। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने फरमाया कैसा मुनाजरा है तेरा, तुमने क्या ऐलान किया है? उसने कहा देखो ये इमारत नजर आ रही है। आपने फरमाया हाँ नजर आ रही है। कहा ये 2000 साल पुरानी इमारत है, हमारी तारीख बता रही है, मगर देखो जैसे दीवारें इसकी पहले थी आज भी है, ईंट जैसे पहले थी आज भी है, ये सही सलामत है, और तुम मस्जिद बनाते
کرتے ہو, ایک سال کے بعد مسجد کی عمارت پرانی ہو جاتی ہے, دیوار پرانی ہو جاتی ہے, اسے رنگ و روغن کرتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دھرم سچا ہے, آپ کا دھرم جھوٹا ہے, آپ کا نیا مذہب ہے, ہمارا پرانا مذہب ہے. اتنا سننا تھا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا بس یہی سوال ہے, یہی مناظرہ ہے. کہنے لگا ہاں اسی کا آپ جواب دے دیجئے. اللہ اکبر. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی محفل کو چیرتے ہوئے اس مندر کے قریب پہنچ گئے. پیچھے پیچھے سارے علماء, وہ سارے پنڈت دوڑے ہوئے گئے, سوچ لے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. مگر اللہ کا وہ بندہ, وقت کا کلندر, وہ مرد مجاہد شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جب اس مندر کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اس مندر کی طرف بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد میں عزیزان گرامی تاریخ بتاتی ہے جیسے جیسے انگلی کا اشارہ کرتے جا رہے ہیں مندر کی ایک ایک اینٹ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرتی چلی جا رہی ہے, دیواریں زمین پر آتی جا رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف کی دیوار منہدم ہو جاتی ہے. مہانت آگے بڑھ کر کہنے لگا آپ رک جائیے, آپ کوئی جادو کر رہے ہیں, آپ کوئی ٹونا کر رہے ہیں. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے چہرے پر جلال تھا. آپ مڑ کر کہتے ہیں نادان, میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے, میں نے کوئی منتر نہیں پڑھا ہے. تو کہا پھر آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے صرف اپنے رب کا کلام قرآن پڑھا ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پاش پاش ہو جاتا. میں نے بس اپنے رب کا کلام پڑھا ہے. اب تو بتا, یہ تیری مندر ہے, یہ عمارت ہے کہ رب کے کلام کو برداشت نہ کر سکا, اس کے جلال کو برداشت نہ کر سکا, اور سنتے ہی زمین دوز ہو جاتی ہے عمارت, زمین پہ آ جاتی ہے عمارت. یہ تیری مندر ہے. مگر مسجد کو دیکھ, ایک نہیں دن میں 5 مرتبہ رب کا کلام پڑھا جاتا ہے, مگر عمارت جیسے پہلے سلامت تھی آج بھی اسی طرح سلامت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جامعہ فیضان غریب نواز حضرت علامہ مولانا مفتی چراغ علی مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب تو بتا دھرم کس کا صحیح ہے کہ قرآن کی ایک آیت برداشت نہ کر سکی تیری عمارت, اس کے جلال کو برداشت نہ کر سکی. مگر آ دیکھ ہماری مسجد ہے, ایک نہیں دن میں 5 مرتبہ رب کا کلام پڑھا جاتا ہے, مگر وہ عمارت جیسے پہلے تھی آج بھی قائم ہے. اب تو ہی بتا دھرم کس کا سچا ہے. تاریخ بتاتی ہے جتنے مہان اور پنڈت تھے سب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاتھوں پر توبہ کر کے سب دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں, سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمانوں یہ آپ کی تاریخ ہے کہ رب کا کلام اگر بندہ پڑھ دیتا ہے تو اس کلام کو سن کر لوگوں کے دلوں میں ایسا گھر کرتا ہے قرآن کہ وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. مگر آج ہم نے تو قرآن کو کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. آؤ دیکھو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت قرآن بتاتے ہوئے آقا کیا فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنت البقیع میں آقا تشریف لے گئے. جب جنت البقیع میں گئے تو آقا نے دیکھا کہ جنت البقیع کے جتنے دفینے ہیں وہ سب باہر ہیں اور سب رحمت و نور میں ڈوبے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں. مگر ایک خاتون ہے جو تخت پر بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا خاتون یہاں سب رحمت و نور میں ڈوب کر رحمت لوٹ رہے ہیں, مگر تو کیوں تخت پر بیٹھی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے بیٹے نے مجھے اتنا غنی کر دیا ہے کہ اب اس کی حاجت مجھے نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا خاتون بتا تیرے بیٹے کا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر تیرے بیٹے کے عمل نے تجھے غنی کر دیا ہے؟ عرض کرتی ہے آقا اگر میرے بیٹے سے ملنا ہے تو مدینہ کے فلاں گلی میں میرا بیٹا کھجور بیچتا ہوا ملے گا. آقا آپ اس سے جا کر ملاقات کر لیں. صبح کا وقت ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں مدینہ کے اسی گلی میں اس خاتون
के बेटे से मिलने के लिए जाते हैं। खातून ने रात में होलिया बता दिया था, आका मेरा बेटा ऐसा ऐसा है, मदीना के फला गली में वो खजूर बेचता हुआ आपको मिलेगा। मेरे आका जब सहाबा के साथ गए, उस बच्चे को देखा, यकीनन वो बच्चा बैठा हुआ सामने खजूर की टोकरी लेकर खजूर बेच रहा है, मगर उसकी जुबान चल रही है। मेरे आका पीछे से जाकर उस बच्चे के पास बैठ गए और मेरे आका ने अपने कान मुबारक को उस बच्चे के करीब किया तो सुना कि वो बच्चा खजूर भी बेच रहा है और कुरान की आयत भी तिलावत कर रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है। मेरे आका ने जब उस बच्चे के समर को देखा, उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटे मुबारक हो, आज मैंने तेरी माँ को ख्वाब में देखा है कि तेरी माँ जन्नतुल बकी में इस हाल में मुझसे मुलाकात की है। बता तेरा कौन सा अमल है जिस अमल ने तेरी माँ को गनी कर दिया है। अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बस मेरा अमल यही है कि मैं काम भी करता हूँ और चलते फिरते उठते बैठते कुरान की तिलावत करके माँ को इसाले सवाब करता रहता हूँ, माँ को मैं इसका सवाब पहुँचाता रहता हूँ। आका फरमाते, बेटे मुबारक हो, तेरे इस अमल ने तेरे माँ को गनी कर दिया है। ए मुसलमानों, अगर ये हमारा बच्चा जो आज मदरसे में जाकर इल्म हासिल कर रहा है, यही बच्चा कुरान पढ़कर कुरान सीख कर ये बच्चा जवान होगा, इसके सीने में कुरान की अजमत रहेगी, कुरान की बरकत रहेगी, तो याद रखो प्यारे कि यही बच्चा कर जवान होकर आपकी ताज़ीम करेगा, माँ बाप का एहतराम करेगा। क्या आपको वो तारीख मालूम नहीं है? हजरात, एक मियाँ बीवी गए मगरिब की सरजमीन पर और जाने के बाद उन्होंने आला तालीम हासिल की थी और आला तालीम हासिल करने के बाद में वो डॉक्टर था शौहर, मगर बीवी उसकी आलिमा थी। जब बच्चे पैदा हुए उसके घर में, पहला बच्चा पैदा हुआ, बीवी कहती है अपने शौहर से, मेरे शौहर नामदार, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊं, हाफिज कुरान बनाऊं। डॉक्टर ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बच्चे को आलिम और हाफिज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है मुआशरे में उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई खास तनख्वाह नहीं होती है, 4-5 हजार रुपया वो कमाते हैं, वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, आला तालीम दूंगा। बेचारी बीवी मजबूर हो गई, शौहर के सामने कुछ ना कह सकी, उसने उस बच्चे को इंजीनियर बना दिया। दूसरा बच्चा घर में हुआ, बीवी ने कहा, मेरे शौहर नामदार, आपने पहले बच्चे को अपने मर्जी के मुताबिक तालीम दिया, अब मुझे, मैं हूँ, मेरा भी हक है बच्चे के ऊपर, मुझे अपने हिसाब से तालीम देने का हक दीजिए। उसने कहा, हरगिज नहीं, मैं अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाऊंगा, हाफिज नहीं बनाऊंगा, उसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा। इसे इंजीनियर बना दिया, पहले को डॉक्टर बनाया, दूसरे को इंजीनियर बनाया, फिर अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया। बीवी रोने लगी, कहने लगी, कम से कम मेरी बात आप मान लीजिए, एक बच्चे को तो आलिम मुझे बनाने दीजिए, हाफिज कुरान बनाने दीजिए। उसने कहा, मुझे मौका दो सोचने का। रात भर सोचा, सुबह के वक्त हुआ तो उसने सोचा, चलो बीवी जिद कर रही है तो मान लेता हूँ बीवी की बात को। उसने कहा, ठीक है, तुम हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, कुछ भी बनाओ, मगर इसके लिए मैं अलग बिजनेस का इंतजाम करूंगा, कारोबार का इंतजाम करूंगा, ताकि किसी का मोहताज ना हो। बीवी ने कहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटे को आलिम हाफिज बनाकर इसे नौकरी करवाऊंगी, मैं आलिम हाफिज इसलिए बना रही हूँ ताकि ये दीन की खिदमत करेगा, ईमान और अकीदे की हिफाजत करेगा, खुद अपने ईमान को बचाएगा और दूसरों के ईमान की हिफाजत करेगा। ये अगर से बिजनेस करेगा, कोई भी कारोबार करे, आप जैसा चाहो इसे कारोबार कराना, कोई भी बिजनेस इसे दे देना। कहा, ठीक है। वक्त गुजरता रहा, एक दौर ऐसा आया, उसका एक लड़का डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना और एक बच्चा अजीजाने गिरामी हाफिज कुरान आलिम दीन बन गया। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, माँ बाप दोनों बूढ़े हो गए। हजरात, जब वक्त गुजरा, माँ बाप दोनों बूढ़े हो गए। वो एक दिन बीवी ने अपने शौहर से कहा, अब जरा अपने बच्चों का इम्तिहान नहीं लोगे? उसने कहा, कैसा इम्तिहान लेना है? कहा, आपने डॉक्टर भी बनाया है, इंजीनियर भी बनाया है और आलिम भी आपका एक बच्चा है, तो कम से कम इम्तिहान तो ले लो कि आपके इम्तिहान में आपने जो मेहनत और मशक्कत की कमाई लगाई है उसका फल आपको कितना मिल रहा है। उसने कहा, ठीक है, इम्तिहान अगर तुम लेना चाहती हो तो ले लो। उसने सोचा होगा ये कोई इम्तिहान लेगी, मगर हजरात, माँ थी बड़ी
होशियार थी, आलिमा थी। उसने एक दिन शौहर से कहा कि आप घर के फला कमरे में चले जाइए, सिर्फ दाराइचे से आप देखते रहना, आप बाहर ना आना, और जो भी बाहर होगा सारी हरकतों सकनात पे आप नजर रखना। कहा करना क्या चाहती हो? कहा बस आप खाली अंदर रहकर तमाशा देखते जाइए। हजरात, अब वो शौहर अंदर चला गया, जो दाराइचे से देख रहा है, बीवी बाहर बैठी हुई है। कुछ देर के बाद में डॉक्टर लड़का आया। जब आया तो माँ ने रोने की सूरत बनाई, अपना हुलिया बनाया, आकर पहुंचा, कहने लगा माँ क्या बात है? कहने लगी कि आज आपके अब्बू ने मुझे मारा है, मुझे डांटा और फटकारा है। इतना सुनना था, डॉक्टर लड़का फौरन जलाल में आ गया। कहा अब उनकी इतनी जुरात हो गई है, इतनी हिम्मत हो गई है कि आप पर हाथ उठाएं। अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, मुझे मिलने दो, मैं उनकी खैरियत लेता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ, मैं उन्हें उनकी औकात दिखाता हूँ। बाप अंदर से दाराइचे से सारी कैफियत को देख रहा है। इतना सुनना था, बाप का कलेजा थक से हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये मेरा वो बेटा है जिसके लिए मैंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, इसे डॉक्टर बनाने के लिए, इसे आला तालीम देने के लिए, और मेरी मोहब्बत का और मेरी मेहनत का समरा ये दे रहा है कि ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है, ये मुझे गालियां दे रहा है, ये मुझे बुरा भला कह रहा है। हजरात, मगर बाप खामोश है। कुछ देर के बाद में इंजीनियर बेटा आया, और जब आया उसने भी माँ की कैफियत को देखा। माँ रोने की सूरत बनाकर बैठी हुई है। बेटा पहुंचा, पहुंचने के बाद कहता है माँ क्या मामला है, आज तुम आंगन में बैठकर रो रही हो? माँ कहती है बेटे, आज आपके वालिद ने मुझे मारा है, बिला वजह मारा है, और बहुत मारा है, और मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए आंगन में बैठी हूँ। जलाल में आ गया। आने के बाद कहता है माँ बताओ, उनका पता बताओ, वो कहाँ है? अभी मैं उनकी टांगे तोड़ देता हूँ, अभी मैं उनकी गर्दन मरोड़ देता हूँ, अभी मैं उनका हाथ तोड़ देता हूँ। उनकी जुरात कैसे हुई आप पे हाथ उठाने की, उनकी हिम्मत कैसे हुई आप पे हाथ उठाने की। बाप दाराइचे से सारी कैफियत देख रहा है, रोता जा रहा है, अल्लाह की बारगाह में रोकर तौबा करता है, परवरदिगार ये मैंने क्या जुर्म कर लिया है, ये मैंने कौन सी खता की है? इस बच्चे को डॉक्टर बनाया था, इसको इंजीनियर बनाया है, करोड़ों रुपया खर्च किया है दोनों के पढ़ाई पर, और ये सिला आज मुझे ये दे रहे हैं। कोई पैर तोड़ने की बात कर रहा है, कोई हाथ तोड़ने की बात कर रहा है, कोई गर्दन मरोड़ने की बात कर रहा है। ये कहकर वो बेटा भी चला गया। कुछ देर के बाद में वो हाफिज कुरान, वो आलिम दीन बेटा भी आ गया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अचारे वो आलिम, वो हाफिज कुरान बेटा भी आया। माँ को रोते हुए देखा, कहा माँ क्या मामला है? कहने लगी बेटा, आपके वालिद ने मुझे मारा है, घर से निकाल दिया है, बिना वजह मारा है। इतना सुनने के बाद वो बेटा माँ को उठाकर सीने से लगाकर मुस्कुराकर कहता है अम्मी, जिंदगी भर आपके वालिद ने आपके हर नाज़ो नेमत को बर्दाश्त किया है, हर नाज को उठाया है, हर नखरे को उठाया है, आपसे बहुत मोहब्बत की है। अगर वालिद ने जिंदगी भर आपसे मोहब्बत की है, आपको नाज़ो नियम में रखा है, तो अगर आप आज के दिन उन्होंने एक तमाचा आपको मार भी दिया तो क्या हुआ? आपके शौहर हैं, आपके शौहर नामदार हैं, जिस तरह वो आपसे मोहब्बत करते हैं, तो कोई खता हुई होगी आपसे, कोई गलती हुई होगी आपसे। कहा बेटे कोई खता नहीं हुई। तो कहा अगर खता नहीं भी हुई है तो बाहर से कोई प्रेशर उन पर पड़ा होगा, गुस्से में आ गए होंगे, अगर मार दिया तो क्या हुआ? आप माफ कर दो, आपके शौहर हैं, शौहर सर का ताज होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है और शौहर के नाज नखरे उठाती है और शौहर की फरमा बरदारी करती है और इसी तरह वो दुनिया से चली जाती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस औरत को बिला हिसाबो किताब जन्नत अता फरमाता है। माँ वो आपके शौहर है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत देख रहा है बाप और वहीं से रो रहा है और कहता है ऐ काश मैंने अपने सब बेटों को आलिम बनाया होता, अपने सब बेटों को हाफिज कुरान बनाया होता। वो मेरे दोनों बेटे जो मेरा हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे थे, मैंने उन्हें करोड़ों खर्च करके उन्हें पाला है, उन्हें पढ़ाया लिखाया है, मगर आज उनसे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये बच्चा जिसे मैं आलिम बनाने के लिए गुरेज कर रहा था, हाफिज कुरान बनाने से दूर भाग रहा था, मेरी बीवी ने जिद करके पढ़ाया था, आज वही बच्चा मेरी ताज़ीम करता हुआ नजर आ रहा है। आज उसके दिल में माँ बाप की अजमत है, आज उसके दिल में माँ बाप का एहतराम है। काश मैंने अपने बच्चे को आलिम और हाफिज बनाया होता। बाप रोता हुआ बाहर
है, सीने से लगाता है और बीवी की पेशानी को चूम कर सीने से लगाकर कहता है, काश मैंने तेरी नसीहत पर अमल कर लिया होता, तूने जो मुझे मशवरा दिया था अगर पहले ही उसे मान लिया होता तो ये दिल ना देखना पड़ता। मैंने अपने मशवरे पर जो अमल किया उसका नतीजा कुछ ना हुआ, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मगर जिस बच्चे को तूने हाफिज और आलिम बना दिया है, जिस बच्चे को मैंने तेरे मशवरे पर अमल करके हाफिज कुरान बना दिया है, वो बच्चा फरमाबरदार है। उसके दिल में माँ बाप की अजमत कैसी है, यही हमारा सही वारिस है, यही हमारी देखभाल करने वाला है, इसके दिल में एहतराम है। इसलिए मुसलमानों, आओ कुरान के करीब हो जाओ, कुरान की अजमत को समझो, इन उलमा से अपना राब्ता मजबूत करो, अइम्मा से राब्ता मजबूत करो, इनकी बारगाहों में अपने बच्चों को लेकर जाओ, जासान में अगर तय कराओ, इनकी बारगाह से सिखाओ अपने बच्चों को। अगर बच्चे इन मदरसों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे तो याद रखो मुसलमानों, वही बच्चा जवान होकर शरीयत का पाबंद होगा, सुन्नत का पाबंद होगा, फिर वो नशा के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि उसने शरीयत पढ़ी है तो उसे पता है कि नशा हराम है, शराब हराम है, चर्च हराम है, गांजा हराम है, ये नशा और चीजें हराम है जो मालिक है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने वाली है, जिंदगियां तबाह करने वाली है, फिर वो उसके करीब नहीं जाएगा, माँ बाप का एहतराम करेगा, इज्जत करेगा, और फिर गारे आप देखोगे उसी की बरकत से अल्लाह ताला घर में कितनी बरकतें अता फरमाएगा। ये ना सोचो प्यारे कि आलिम बनकर या हाफिज बनकर ये इल्म दीन हासिल करके ये कितना कमाएगा, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, उसने रिस्क मुहैया कर दिया है, लिख दिया है किसे कितना रिस्क देना है। आपने नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा जो मुख्तसर सा पैसा कमाते हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्जत की जिंदगी गुजारते हैं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, शान और शौकत की जिंदगी गुजारते हैं, किसी के मोहताज नहीं रहते हैं। अल्लाह ताला इन्हें इज्जत भी देता है, शोहरत भी देता है, दुनिया भी इनकी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। आप देखो प्यारे, हफ्ता के दिन जब आप जुमा के दिन मस्जिद में जाते हैं तो कभी आपने गौर किया, कभी आपने देखा कि हजरात मस्जिद में जब जुमा के दिन जाते हैं, हमारे मोहल्ले का वो लड़का भी है जो इंजीनियर भी है, डॉक्टर है, वो लड़का जो IAS है, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, जज है, वकील है, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, मगर आपने कभी गौर किया एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक IAS जब मस्जिद में जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो हजरात ये कहाँ बैठता है? ये मुसल्ले पर वहीं बैठता है जहां आम नमाजी बैठते हैं। हजरात ये जाकर इंजीनियर, ये IAS करने वाला, ये सब जाकर वहीं बैठ जाते हैं, मगर हमारी कौम का इमाम, हमारा हाफिज, हमारा आलिम हजरात जब जाता है मस्जिद में और मिंबर पर बैठता है तो आप गौर करो, जहां इस ऑफिसर के सर की बुलंदी खत्म होती है वहां से एक हाफिज, एक इमाम के कदमों की बुलंदी शुरू होती नजर आती है। जब मिंबर पर एक खतीब बैठता है तो जहां इसके कदम होते हैं, जहां कदम की बुलंदी शुरू होती है वहां एक दुनियादार के सर की बुलंदी खत्म होती है। अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है, ये मकाम अता फरमाया है। इसलिए शरीयत के करीब आओ, दीन के करीब आओ, अपने बच्चों को दीन से करो, करीब करो, ताकि मुआशरे से बुराई का खात्मा हो सके। हजरात ये मदरसा जामिया फैजाने गरीब नवाज जो आपके मोहल्ले में कायम है, याद रखो मुसलमानों, इससे अपने बच्चों को मुंसलिक करो, अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजो, यहाँ से इल्म दीन अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता करो और इन मदरसों का ख्याल करो, इन मदरसों की मदद करो। याद रखो मुसलमानों, अगर आज हम इन मदरसों में मदद करेंगे और यहाँ से बच्चे आलिम हाफिज बनकर इल्म दीन सीख कर निकलेंगे तो जब तक वो दुनिया में रहेंगे बच्चे दीन की खिदमत करते रहेंगे, उसका सवाब सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि खिदमत करने वालों को मिलता रहेगा। और जब वो दुनिया से जाएंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान जब दुनिया से जाता है, हर शख्स के कंधे पर दो फरिश्ते होते हैं, करामन और कातिबीन, अच्छाइयां और बुराइयां लिखने वाले। ये दोनों फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार अब तेरा बंदा तो दुनिया से चला गया है, हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या हम आसमानों में आ जाएं? रब फरमाता है फरिश्तों से आसमान भरे पड़े हैं, वो इबादत में मशगूल है, मौला हम जमीन में फैल जाएं, मेरे बंदों से जमीन भरी पड़ी है, परवरदिगार फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों ऐसा करो कि तुम ना जमीन में फैलो ना आसमानों में आओ, मौला फिर हम कहां जाएं? ऐसा करो
उस कब्रिस्तान में चले जाओ जहां मेरा बंदा दफन है, जहां मेरे बंदे को दफन किया गया है। मौला क्या करना है? रब फरमाता है वहां चले जाओ, अब उसकी कब्र पर बैठकर कयामत तक के तुम कुरान पढ़ते रहो, तुम कुरान की तिलावत करते रहो। और उसका सवाब सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसे इल्म दीन हासिल करने के लिए जिन जिन लोगों ने मदद की है सबके लिए दुआ खैर करते रहो, सबको इसाले सवाब करते रहो। क्या आपने समझा है अज़ीज़ान करामी, इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए मदद करना कितना मकाम है। अल्लाह अल्लाह। और तारीख में बता दूं प्यारे, जो मक्का मदीना तशरीफ ले गए हैं उम्रा के लिए या हज के लिए, उन हाजियों से आप पूछिए कि हजरात जब वहां जाते हैं उन लोगों ने देखा होगा आज भी वहां एक निशानी मौजूद है जिसे नहर जुबैदा कहा जाता है। हजरात नहर जुबैदा, हजरत जुबैदा ने उस नहर को फरमाया था जब जुबैदा हारून रशीद की बीवी हज के लिए गई और जाने के बाद जब वहां पहुंची उसने देखा कि हाजियों के लिए पानी की बहुत तकलीफ है, बड़ी किल्लत है, बड़ी परेशानियां होती हैं हाजियों को पानी के लिए। उसने अपने साथ में तमाम लोगों को, सैकड़ों लोगों को लेकर गई थी। उसने फौरन अपने काफिले के इंजीनियरों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मैंने सोचा है कि हज के लिए जब आते हैं, हरमैन शरीफैन के लिए हाजी आते हैं तो पानी की बड़ी तकलीफ होती है, मैं चाहती हूँ इनके लिए पानी का इंतजाम कर दिया जाए ताकि पानी की तकलीफ ना हो, तो तुम मशवरा दो क्या किया जाए। उन लोगों ने कहा मन का अगर डीम बनाया जाए और डीम बनाने के बाद में वहां से नहर के जरिए पानी हरमैन शरीफैन में सप्लाई कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह हज के अय्याम में हाजियों को पानी की तकलीफ नहीं होगी। तो कहा फिर देर किस बात की है, जाओ सर्वे करो। अब इंजीनियरों ने, उस जमाने के इंजीनियरों ने सर्वे किया तो सर्वे करने के बाद एक पहाड़ के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा मलका हमने देखा है एक पहाड़ के पास कुछ हमवार जमीन है, उसी हमवार जमीन में अगर हम डीम बना दे, खोद कर वहां जो है तालाब बना दे ताकि जब बारिश हो तो बारिश जब पहाड़ पर होगी तो पहाड़ का सारा पानी उस नहर में, उस डीम में जमा हो जाएगा। तो सारे बारिश के पानी को जमा करने के बाद फिर उस डीम में जो पानी जमा होगा हज के अय्याम में हम नहर के जरिए हरमैन शरीफैन में हाजियों के लिए सप्लाई कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहा फिर देरी किस बात की है, जल्दी करो, नहर बनाओ, डीम तैयार करो। तमाम इंजीनियरों ने कहा मलका मगर उसके लिए खर्च बहुत आएगा। कहा कितना खर्च आएगा? कहा खजाना खाली हो जाएगा। जुबैदा कहती है तुम खजाने की बात करते हो, अगर मेरे जिस्म पर जो जेवरात है अगर ये भी बिक गए तो भी कोई गम नहीं, मगर मखलूक खुदा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के घर आने वाले मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डीम तैयार करो। इंजीनियरों ने तैयार किया और तैयार करने के बाद में जब नहर जुबैदा बनकर तैयार हो गई, इंजीनियर वो रजिस्टर लेते हैं, वो रोजनामचा लेते हैं, वो हिसाब किताब की कॉपी लेते हैं और लेने के बाद बगदाद पहुंचे। मलका जुबैदा के दरबार में हम जो है पहुंचने के बाद खादिमों से कहा मलका जुबैदा से मिलना है। खादिमों ने जुबैदा के पास पहुंचाया। जब ये रजिस्टर लेकर गए जुबैदा ने कहा ये क्या लेकर आए हो? कहा मलका जो अखराजात आए हैं, जो खजाना खाली हुआ है इसमें हिसाबो किताब लिखा हुआ है, आप उस रजिस्टर को देख लीजिए। तारीख बताती है जुबैदा ने उस रजिस्टर को लिया और दरिया की तरफ देखा और देखकर आसमान की तरफ निगाह उठाई और उठाकर रोकर कहती है परवरदिगार ए मेरे मालिक, आज मैं इनसे हिसाब नहीं लेती हूँ, इन्होंने जो खर्च किया है मेरे खजाने से जो खर्च हुआ है मौला मैं इनसे हिसाब नहीं लेती हूँ, कल मैदान महशर में तुम मुझसे हिसाब ना लेना। ये कहकर जुबैदा ने रजिस्टर को दरिया के हवाले कर दिया, रजिस्टर को दरिया में डाल दिया और कहा जाओ मुझे कोई हिसाबो किताब नहीं लेना है। तारीख बताती है जब जुबैदा का इंतकाल हुआ, गौर करना मुसलमानों, किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, पूछा जुबैदा बता तेरा क्या हाल है, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहने लगी हुजूर कब्र में मैं बाद में आई हूँ, अल्लाह ने नहरे कौसर पहले भेज दिया है, आबे कौसर पहले भेज दिया है। ए मुसलमानों याद,
اے مسلمانوں یہ حال ہے علم دین کی مدد کر علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے مدد کرنے کے لیے، اس لیے اے مسلمانوں ان مدرسوں سے اپنا رابطہ مضبوط کرو، اس میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجو تاکہ آپ کے بچے علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں، اپنے آپ کو علم دین سے مزین کر سکیں، کیونکہ یہی بچہ عزیزان گرامی ہمارے معاشرے کو سدھارے گا، یہی بچہ ہمارے قوم کو سدھارے گا۔ یاد رکھو اگر ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی راہ راست سے الگ ہو گیا، غلط راستے پہ چل گیا، تو سمجھ لو کہ حضرات ایک قوم ایک نسل تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، آج پیارے پورے ملک کے اندر صرف یہی نہیں بلکہ جہاں جاؤ وہیں سننے میں آتا ہے کہ مسلم معاشرے میں نشہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے چھوٹے چھوٹے نشہ کے عادی ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے تو دوائیں لے کر نعوذ باللہ کوئی گولی ایسی نکلی ہے جس کے ذریعے وہ نشہ کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچو مسلمانوں، یہ بچہ جسے قوم کا رہبر بننا چاہیے، مجاہد بننا چاہیے، سپہ سالار بننا چاہیے، حضرات یہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ اور ماں باپ آنکھ بند کر کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو پھر آپ دعائی دیتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، عالم کے پاس جاتے ہو کہ بچے کو سدھارنے کا کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ اب کیا وہ سدھرے گا؟ جب سدھرنے کا وقت تھا، جب اسے سنوارنے کا وقت تھا تو آپ نے تو اسے سنوارا ہی نہیں، آپ نے تو اسے سدھارا ہی نہیں۔ اب وہ جوان ہو چکا ہے، اس کے خون میں نشہ بھر چکا ہے، اب اسے کیسے سدھارو گے؟ اس لیے ضرورت ہے آج پیارے کہ ہم دیکھیں ہمارا بچہ عشاء کے بعد گھر سے غائب ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرات عشاء کے بعد گھر میں ہونا چاہیے، مگر ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ ماں باپ کو فکر نہیں، رات بھر ہمارا بچہ روڈوں پر گھوم رہا ہے، گلیوں میں گھوم رہا ہے، رکشے میں بیٹھ کر جو ہے باتیں کر رہا ہے۔ تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ موبائل لے کر چیٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہا ہے۔ کبھی ہم غور کرتے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں اگر ان چیزوں پر ہم دھیان دے دیں اور اپنے بچے کی تربیت پر توجہ دے دیں تو انشاءاللہ العزیز آج بھی ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، ہمارا ماحول سدھر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے پیارے کل میدان محشر میں ماں باپ سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دی ہے، آپ نے اپنے بچے کو بچپن میں کیسے سنوارا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو علم دین کی طرف مائل کیا کہ نہیں کیا۔ حضرات بچوں سے بعد میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے پہلے سوال ہوگا۔ اس لیے آپ ذمہ دار ہیں، اپنے بچے کو راہ راست پر لائیں۔ آپ پہلی درس گاہ ہیں ان کی، پہلی تربیت گاہ ہیں ان کی۔ اگر آپ اپنے بچے کو پہلے ہی سے تربیت دیتے رہیں گے تو یاد رکھو پیارے پھر وہی بچہ آگے چل کر کیا وجہ ہے آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے قوم مسلم میں کوئی صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں آ رہا ہے، کوئی محمد بن قاسم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پیارے آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو مسلمان تھے، مگر کیا معاملہ ہے حضرات؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنے۔ حضرات محترم آؤ پیارے سنت رسول کو اپنا لو، آؤ مدینے والے کی محبت اپنے سینوں میں بسا لو، اپنے سینے کو نبی کا مدینہ بنا لو۔ قسم خدا کی اگر جو ہے محمد بن سلیمان جزولی مصر میں رہ کر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے آقا سے محبت کی ہے اور میں نے دلائل خیرات شریف کو لکھا ہے تب سے مدینے والے سے اتنا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے، اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ رہتا ہوں مصر میں اپنے حجرے میں، اور جب چاہتا ہوں گنبد خضرا کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مدینے والے کا جلوہ نظر آ جاتا ہے، گنبد خضرا کے مکی نظر آ جاتے ہیں۔ تو پیارے اسی طرح ہم بھی اپنا رشتہ مدینے والے سے مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مزین کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنے مدرسوں کا امداد کرنے اور اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔